ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ایمنگنور کے دو مدرسے ہیں، مدرسہ سلطان العلوم کہاں ہے؟ کارگزار سنا بیٹھو بیٹھو، مدرسہ سبیل الفلاح ادھر آئے سامنے آ جائے، پرچہ لا لے آپ کرنول کا مدرسہ سعیدیہ دارالعلوم سعیدیہ کون ہے؟ کارگزاری سنا ذرا سامنے آ جائے۔ ڈون سے نور الاسلام مدرسہ نور الاسلام کون ہے؟ کارگزاری سنانے کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہے، ادھر آ جائے۔ پرچہ نہیں دیا آپ کو؟ اچھا کیا بول رہے ہیں جماعت تو وہ بچوں کا جو منظر ہے میں ذرا فوٹو وغیرہ لے کر ہمیں بتا نہ کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں وہ بتاتے ہیں بول کے آپ جماعت کہیں لائے لاؤ بولے کون کی لگے بعد بات ہے انشاءاللہ۔ کرنول کا عمر ابن خطاب جو ہے کہاں ہے؟ مدرسہ نام نہیں ہے، کہاں ہے مدرسہ؟ بدار پیٹ میں جو مدرسہ ہے کون ہے ذمہ دار اس کے؟ مفتی عبد القادر صاحب کے مدرسے کون ہے ذمہ دار؟ طلبہ نہیں ہے آ رہے کیا؟ اچھا پرچہ لے لو کارگزاری۔ کیا لکھے؟ اشرفیہ بھائی راجولی کا مدرسہ اشرفیہ کہاں ہے؟ کون ہے سنانے والے؟ ادھر جاؤ بیٹا سامنے ماشاء۔ گوڈور کا سراج العلوم مدرسہ سراج العلوم کون ہے؟ کارگزاری کون سنا رہے ہیں؟ ماشاء ادھر آ جاؤ ماشاء۔ منگل پاڑ کے سبیل الحسنات مولانا منیر صاحب کے مدرسہ کہاں ہے؟ اچھا اور کرنول کا جو ہے مدرسہ سبیل الانوار آ جاؤ بیٹا سامنے۔ اور اس کے علاوہ جو مدرسے آئے ہیں، جو مدرسے کے ذمہ دار نام بولے جن کا نام نہیں آیا کون ہے؟ ان مدارس کے علاوہ جن مدرسوں کا نام نہیں آیا کون ہے وہ؟ لکھو اس میں آ گیا نا؟ کہاں کے ہیں؟ ادھر آئیے مطلب پرچہ کا ہے دو دے یہ دو پرچے لے کر کارگزاری لکھ کون ہے ذمہ دار؟ آپ کے استاد آئے ہیں اور ابھی مغرب میں جو آئے ہیں طلبہ جن کا نام نہیں آیا ہے کوئی موجود ہے اس میں؟ الحمدللہ جو ہے مشورے سے بات طے ہوئی ہے، الحمدللہ ہمارا جو آج کا جوڑ ہے مدارس کے طلبہ اور اساتذہ کا یہ عصر سے لے کر صبح کے ناشتے جمعہ کے ناشتے تک ہے، یعنی کل صبح ناشتے تک ہے 8 بجے تک ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے سارے طلبہ استقامت کے ساتھ پورے نشستوں میں ہمیں جم کر بیٹھنا ہے اور جو باتیں ہدایتیں یہاں سے دی جاتی ہیں ان باتوں کو ہمارے اکابر کے باتوں کو لے کر اپنے مدرسوں میں عمل کرنا ہے، کیونکہ کارگزاری کسی کو فیل کرنا پاس کرنا نہیں ہے، بلکہ بھئی ہم اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دعوت کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ بھئی ہمارا ہر طالب علم جو ہے دعوت کے علم کے ساتھ ساتھ دعوت میں شریک رہے اور اپنے مدرسوں میں جو ہے ان اعمال کو جیسے ہمارے کو فارغ جو وقت ملتا ہے اس میں جو ان اعمال کو کرنا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے جو ہے کارگزاری والے سنانے والے طلبہ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، آپ سے کیا جو ہے وہی پوچھا جائے گا، جو ہو رہا وہ بتانا ہے کہ بھئی آپ کے مدرسے میں تعلیم ہو رہی، مشورہ ہو رہا، ملاقاتیں ہو رہی ہے، ہفتے میں گشت ہوتا ہے، اسی روزہ ایک دن کی اسی روزہ کی جماعت جاتی ہے چھٹیوں میں، وہ بتانا ہے۔
آپ کے مدرسے میں چار ماہ لگے سے کتنے طلبہ ہے، چلا لگے سے کتنے طلبہ ہے، یہ بتانا ہے. اس سے علاوہ آپ کو کیا بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بھی انشاءاللہ ہمت کے ساتھ جو ہے جو آپ کے مدرسے میں جو کام ہو وہ بتانا ہے. انشاءاللہ بتائیں گے نا، کیا بھی ٹینشن نہیں لینا انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. آئیے. آتے رہیں دوست، ایک ایک کو بلاتے. کارگزاری کا یہ عمل عزیز طلبہ ابھی ہم کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن پوچھنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے آگے. اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ابھی ہم مدرسے میں یہ کام جیسے پوچھا جا رہا ہے ویسے نہیں کر رہے ہیں تو اب یہاں سے ہم عزم کر لیں کہ اب ہم لے کر چلیں گے، اب کریں گے. تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے کام کے بارے میں پوچھتے رہنا. اللہ کے نبی نے ایک صاحب سے فرمایا، مجمع میں اعلان فرمایا کہ خطرے کی گھاٹی ہے، رات میں کون پہرا دیں گے؟ تو ایک صاحب نے کہا میں پہرا دوں گا. حضور نے فرمایا خطرے کی جگہ ہے. نبی جی میں تیار ہوں. اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تیار ہو کر آؤ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں گھاٹی کی فلاں جگہ ٹھہرو اور سواری سے مت اترنا، کیونکہ یہ خطرے کی جگہ تھی. صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے سوار کا کیا ہوا کہ وہ واپس آ گئے؟ تو حضور سے صحابہ نے فرمایا نبی جی ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ابھی آنے والے ہیں. پھر وہ آئے تو سواری سے اترنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا رات میں جو کام کرنے کے لیے تمہیں دیا گیا تھا تم نے وہ کام کیسے کیا؟ حضور نے پوچھا کیا سواری سے اترے تو نہیں تھے رات میں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں نبی جی میں نہیں اترا تھا، دو کام کے لیے اترا تھا، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، نماز فجر ادا کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آدمی اللہ کے راستے کی محنتیں پوچھا جاتا تھا. حضرت عمر کا مزاج تھا جو کام دیا گیا وہ کام پوچھنا کیسے کام کرے. حضرت عمر فرماتے تھے میں کسی کو کوئی کام دوں تو جب تک وہ کام کر کے آ کر مجھے نہ سنا دے اس وقت تک میں اس کام سے فارغ نہیں ہوں. تو یہاں جو جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو نوٹ کرتے رہے. جیسے ہماری عادت ہوتی ہے مدرسے میں نوٹ کرتے رہنا، سب کو قلم چلانے کی عادت ہے ماشاءاللہ، اچھی اچھی باتیں ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر اچھی باتیں چننا مجھے پسند نہ ہوتا تو میں زندگی پر موت کو ترجیح دیتا. تو یہ تو طلباء کا مزاج ہوتا ہے اچھی اچھی باتیں نوٹ کرنا، تو ہم دماغ میں بھی محفوظ کر لے، لیکن ہم کمزور زمانے میں ہیں، دماغ میں جلدی محفوظ نہیں ہوتا ہے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کو ساری حدیثیں زبانی یاد ہو گئی تھی کیونکہ ان کے پاس لکھنے کا انتظام نہیں تھا. لیکن ہمارے پاس ایسا ذہن نہیں ہے تو ذہن میں بھی کاپی میں بھی تھوڑا تھوڑا نوٹ کرتے رہے. جو باتیں پوچھی جا رہی ہے اگر کر رہے ہیں تو وہ بتائے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کل سے مدرسے میں یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ. آؤ ایک اور چھوٹا مائک ہے کیا؟ ایک مائک ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ اسلامیہ سلطان العلوم ایمگنور، کل 70 طلباء، بڑے 30 طلباء، سال 4 ماہ نہیں کوئی نہیں، چلا لگائے ہوئے طلباء 3 طلباء، تعلیم میں شرکت کرنے والے طلباء، ہفتے میں 70 طلباء اور 5 استاد رہتے ہیں. ہفتے عزائم انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن رہیں گے. مشورے میں شرکت کرنے والے طلباء کوئی نہیں، بڑے طلباء 10 طلباء رہیں گے. روزانہ ملاقاتوں کے لیے جانے والے طلباء کوئی نہیں. پہلا گشت کرنے والے طلباء 10 طلباء. عزائم انشاءاللہ 20 طلباء رہیں گے. پہلا گشت کہاں کرتے ہیں؟ اپنی مسجد تو وہ مدرسے میں مسجد ہے بازو میں. کس دن کرتے ہیں گشت؟ جمعہ.
जुमेरात जी, जुमेरात तो मकामी साथी भी जुड़ते हैं उसमें। जी मकामी साथियों का गश्त है तो तलबा भी हाँ। इसमें जुड़ जाते हैं जी क्या? जी जी। दूसरा गश्त करने वाले तलबा कोई नहीं। हफ्ते में 24 घंटे की जमातों की औसत तादाद हर माह एक दिन 10 तलबा निकलते हैं। इंशाअल्लाह आज़ाइम 15 तलबा निकलेंगे। हर माह दो 24 घंटे निकालने वाले तलबा कोई नहीं। तरतीब से 5 अमाल करने वाले तलबा कोई नहीं। तादिल ईद रमजान के बाद जमात अभी कब गई थी? आज से पहले कब गई आपके पास से? 24 घंटे की जमात कब गई थी? बकरीद से पहले आप गए थे उसमें? नहीं, दूसरे बच्चे कितने तलबा गए थे उसमें? 4 तलबा 4 गए थे। जी। तो कौन ले गए थे वो जमात? अपने गाँव वाले जी अपने गाँव वाले ले। मौलाना ये आपका ही मदरसा है, तो वो 24 घंटे की जमात कौन ले गए थे? वो असल महीने में एक मरतबा जाती है। तो गुज़िश्ता जो बच्चे निकले थे कितने तो गुज़िश्ता महीने कौन गए थे साथ बताने? जिम्मेदार आप गए थे। कितने तलबा गए थे? 10 तलबा। तातील ईद उल अज़हा में अशरा निकालने वाले तलबा 4 तलबा हैं। आज़ाइम इंशाअल्लाह 10 तलबा निकलेंगे। ये ईद उल अज़हा की छुट्टियों में लगाई थी ये तलबा? जी जी 10 दिन के लिए गए थे। हाँ। कहाँ गई थी जमात? 4 तलबा इधर मरकज़ में। तो किस जमात के साथ उनको जोड़े थे? 4 तलबा आम साथियों के साथ। सालाना तातिल में साल 4 माह छिल्ले में लगाने वाले तलबा 4 तलबा हैं। आज़ाइम इंशाअल्लाह 10 तलबा लगाएंगे। साल 4 माह छिल्ले की मौजूदा तश्कील 3 तलबा एक जमात निकलेंगी। तालीम फजर के बाद पढ़ाई। हाँ जी हाँ जी। इंशाअल्लाह। बड़े 30 तलबा है, तो वो तलबा को अगर बिठाने की फिक्र करें। जितने अमाल बताए जा रहे हैं यहाँ पर, आप हजरात बहुत गौर से सुनिए इसको, ठीक है ना? कारगुजारी के अमल में ही समझ में आता है हमें क्या करना था, हमने नहीं किया, तो बस अब आइंदा करने की तरतीब बना लेना है। तो कारगुजारी में समझ में आता है हमें। अभी यहाँ जो पूछा जा रहा है कि भाई आप रोज़ तालीम करते हैं, रोज़ मशवरा करते हैं, हर काम दोस्तों करने का है। ये सारे मदरसों में खूब कर रहे हैं। हमारे पास मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह तलबा जमकर करते हैं। आज जोड़ है हैदराबाद में 100 तलबा गए हैं। छोटे छोटे बच्चे सुबह से आकर बोल रहे थे मुझे कि हमको इजाज़त दीजिए, हम भी जोड़ में जाना चाह रहे। हर जुमेरात की जमात में तलबा आकर बोलते हैं कि हमको भी ले जाइए, हमको भी ले जाइए। माहौल बनाने से बनता है। नेकियों का माहौल नहीं बनाओगे तो गुनाहों का माहौल बन जाएगा। पहले दुनियादार लोग भी गुनाह नहीं करते थे, अब दीनदार लोग कर रहे हैं। तो इसलिए घबराना नहीं। जो बातें यहाँ बताई जा रही है तवज्जो से सुनो और इंशाअल्लाह वैसा करना है उसको। यहाँ बैठो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा दारुल उलूम सबीलुल फलाह यमिगनूर। कुल तलबा 80 पर 5 है, बड़े तलबा 25 है। साल 4 माह छिल्ला लगाने वाले तलबा, लगाए हुए तलबा 6। तालीम में शिरकत करने वाले तलबा पूरे पूरे तलबा लिखे नहीं है, पूरे तलबा लिखे मुकम्मल। मशूरे में शिरकत करने वाले तलबा पूरे तलबा। रोज़ाना मुलाकात करने वाले 5 तलबा है। 1 अगस्त में
मुकम्मल तलबा क्यों नहीं कर रहे मुलाकात जब तालीम में मशवरे में शिरकत कर रहे हैं? सारे तलबा तालीम में मशवरे में शरीक है ना, तो मुलाकातें क्यों नहीं कर रहे? शर्मा रहे होंगे शायद, क्यों नहीं कर रहे आपस में? साथी भी है आपके यहाँ, आपके साथ आए है जी। जैसे सारे तलबा ये मदरसे के तालीम में शरीक हो रहे, ऐसे ही मुलाकात भी करना है रोज़ाना आपस में। आप हजरात रोज़ाना अपनी आपसी बातचीत तो करते हैं ना, दोस्त मिलकर एक दूसरे के साथ जाते हैं बाजार को, दुकान को, इधर उधर की बातें करते हैं। जैसे हम इधर उधर की बात कर रहे ऐसे ही हम दीन की बात करें तो वो मुलाकात बन जाएगी। आसान है बहुत। जैसे हमने किसी से मुलाकात की खैर खैरियत ले ली और साथ में ये भी कह दिया कि आप तालीम में नहीं जुड़ रहे, तालीम में भी बैठिए, अच्छा रहेगा, ये मुलाकात पक्की हो गई है। ऐसे ही हमने बातों बातों में ये कह दिया कि जुमेरात को जमात जा रही है, मेरा तो इरादा है जाने का, आपका क्या इरादा है? अजीज तलबा, अपने आप को छोटा ना समझिए। तरबियत की उम्र पैदाइश से लेकर 10 साल तक का ज़माना तरबियत में बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा। ये सारे काम इसी उम्र के अंदर सीखना है। तो इसलिए जो बात बताई जा रही है उसमें तकल्लुफ ना करें। खैर के कामों में लोग बहुत शर्मा रहे इस वक्त, हर खैर के काम में। गुनाह करने के लिए लोग नहीं शर्मा रहे, देखिए आप। तो इसलिए शर्माना नहीं है इसमें। और असातिज़ा भी यहाँ मौजूद है, तो असातिज़ा खास सरपरस्ती करे, अपनी निगरानी में आमाल कराए। असातिज़ा कराएंगे तो फिर किसी किस्म की शर्म नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपने मदरसे में मशवरे में बैठते हैं, कभी कभार, कभी उस्ताद बैठते हैं, कभी कोई बैठते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 तलबा आराम से बैठते भी है। एक दिन हम बैठकर सुने, बहुत कम उम्र तालिब इल्म में, लेकिन ऐसी कारगुजारी ले रहे थे जैसे एक बड़े जिम्मेदार लेते हैं। बताओ, यही ज़माना रहता है शऊर के बेदार होने का, सलाहियतों के परवान चढ़ने का। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अच्छा सुने, तवज्जो से सुनो और ये सारे काम करना। पहला गश्त करने वाले तलबा पूरे तलबा, दूसरा गश्त करने वाले तलबा 10 तलबा है। दूसरा गश्त करने वाले 10 तलबा है। थोड़ी तरतीब बताओ कैसा करते हैं दूसरा गश्त? खरिये में जाकर, हाँ, खरिये में जाकर करते किस दिन जाते हैं? करिया में जाएंगे, आएंगे तो पूरा तालीम का वक्त निकल जाएगा ना। हैं। असर के बाद जाते हैं, 1 घंटा असर बाद जाते हैं, और असर बाद जाकर गश्त करते हैं। फिर कब आते हैं मदरसे को वापस? मगरिब के बाद आते हैं। कितनी देर में आ जाते हैं मगरिब के बाद? 7:30 बजे तक आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, दूसरे गश्त की तरतीब यही है, असातिज़ा को एतमाद में लेकर, असातिज़ा की निगरानी में। चूँकि छोटे मदरसे हैं, छोटे तलबा है, इसलिए हमारी तो असातिज़ा से दरख्वास्त है कि वो निगरानी करे, ये काम कायम कराए, इस काम को हारिज ना समझे, मुआविन समझे। बड़े बड़े अहलुल्लाह इस वक्त मदरसे चलाने वाले बता रहे, दावत के काम से तलबा की तरबियत हो रही है, और हम तजुर्बे में देख रहे, बड़े बड़े लोग मुतमईन हो गए। पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत के लिए ढाल बन गया दावत का काम। मदरसों में भी बेहतरीन तरबियत हो रही है, इसलिए हरज ना समझे इसको। मदरसा कहती है उसको कि हम मुस्तकबिल में एक आमले की फैक्ट्री चला रहे हैं, और मुस्तकबिल में ये वाकई अमला बने, उसकी शक्ल ये है कि हम अभी इनको सही से चलाए। तो दूसरे गश्त की तरतीब जो ये बता रही, उसकी आसान शक्ल ये है कि हम जहाँ भी दूसरा गश्त करने करीब की बस्ती में जाएंगे, छुट्टी का वक्त इस्तेमाल करें। जैसे असर से पहले छुट्टी हो गई तो वहाँ जाकर असर पढ़े, असर से मगरिब तक गश्त कर ले, मगरिब के बाद 5-7 मिनट बातचीत करके जल्दी से भागकर मदरसा आ जाए। मगरिब के बाद की तालीम का हरज ना हो और गश्त हो जाए, ऐसा दूसरा गश्त हमें करना है। दूसरे गश्त की वजह से मगरिब की पूरी तालीम ही चले जा रही, ऐसा हमारा हर काम तालीम में हरज के बगैर होगा। जो वक्त हमारा फजूल बातों में जाने वाला था, वो वक्त हमारा काम में लग जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा इससे। हर हफ्ता 24 घंटे की जमातों की औसत तादाद नहीं है। नहीं जाती है आपके पास जमात?
नहीं 24 जाते, घंटे की जमात नहीं निकालते हैं? आइंदा निकालेंगे इंशाल्लाह। अब तक नहीं गई? नहीं, ठीक, फिक्र करें। अब 24 घंटे की जमात बनाना भी बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे जाकर ऐसे ऐसे लोगों को मस्जिद लेकर आ रहे जो 40-50 साल में कभी मस्जिद नहीं आए। ऐसी अजीब कारगुजारी आ रही है, तलबा की जमातें कर रही है ये सारा काम। इसलिए 24 घंटे की जमातें निकालने से पता चलेगा कि मदरसे के अतराफ में माहौल क्या चल रहा है। फिक्र करें इसके। हर माह 24 घंटे लगाने वाले तलबा कोई नहीं। ठीक, आइंदा अजाइम इंशाल्लाह 10 बचे। तरतीब से 5 आमाल करने वाले तलबा कोई नहीं। ठीक, माशाअल्लाह, अच्छी कारगुजारी है। ठीक है, जो काम कर रहे मुबारक हो, जो नहीं हो रहा है अब करो जाकर। ठीक है, आपके असातिज़ा भी है सब, वो भी सुन रहे हैं बात को। इंशाअल्लाह वो आपको और अच्छी से समझाएंगे बाद में। ठीक, आओ आओ, मदरसा सईदिया आओ। खालिद यहाँ जो बोलना रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मदरसा दारुल उलूम सईदिया लक्ष्मी नगर करनूल में है। कुल तलबा 115 है, बड़े तलबा इसमें 60 है और 4 माह लगाए हुए तलबा 8 है, छिल्ला लगाए हुए तलबा 10 है। तालीम में शिरकत करने वाले तलबा 40 है, मशवरे में शिरकत करने वाले तलबा 10 है, रोज़ाना मुलाकात करने वाले तलबा 10 हैं। पहला गश में शिरकत करने वाले तलबा 40 मशवरे में तलबा कम बैठते हैं क्यों? 18 तलबा चिल्ला लगाए, 4 माह लगाए, फिर मशवरे में क्यों नहीं बैठ रहे? 24 घंटे लगाने के बाद मशवरे में बैठने की फिक्र आ जाती है बच्चों में। चिल्ला और 4 माह लगाए हुए 18 तलबा है जी, लेकिन 10 तलबा ही मशवरे में बैठ रहे, क्यों ऐसा? क्योंकि मदरसे में चंद तलबा हॉस्टल है, चंद मकामी है, दारुल इकामा वाले हैं। अच्छा, तो अतराफ में जहाँ अपना मशवरा किस वक्त करते हैं? मशवरा दोपहर के टाइम पे जी, दोपहर के टाइम दोपहर में करते हैं। जी, तो शहरी तलबा भी तो रहेंगे, दोपहर में कहाँ जाते हैं शहरी तलबा? बैठते हैं। चंद तलबा है जो 60 तलबा बड़े हैं, जी है ना? जी 18 तलबा तो वक्त लगाए हुए हैं, तो वहाँ फिक्र करनी चाहिए ना। 18 तलबा जो वक्त लगाए कम अज कम। नहीं, मशवरा दोपहर में करते हुए। मशवरा किस वक्त होता है जी? अच्छा, मशवरा फजर के बाद होते हैं। फ़ायदे के वक्त में अगर कर ले तो अच्छा है, क्योंकि हम सारे तलबा को काम का आदी बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसा वक्त जिसमें शहरी तलबा भी हो, हर तालिब इल्म को बाद में काम के मैदान में उतारना है। अल्लाह वालों ने बहुत सोच समझ कर ये तरतीब चलाई है काम की। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह जब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के पास मदरसे में गए और जाकर तकादा रखा कि बच्चों को इस काम में लगाए, तो हज़रत की चीख निकल गई कि तालीम का हरज हो जाएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने इतना बताए कि उसी जगह पर मुफ्ती साहब को तैयार करा कर उठे, अहमियत बताई। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने राह तकते थे अहले इल्म की। मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह ने आखिरी उम्र में हजरत के साथ थे, जुबान में हरकत होती तो सबको बात समझ में नहीं आती थी। मौलाना इलियास साहब की आखिर उम्र में तो मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह ने देखा कि कुछ तलबा आए तो उठकर गए, उनको बिठाया, इकराम किया, बात की, बात समझाई पूरी, फिर उनको रवाना करके मौलाना इलियास साहब के पास आए। मौलाना चारपाई पर लेटे लेटे देख रहे थे कि कौन आए। तो मौलाना ने पूछा, है रहमतुल्लाह ने पूछा मौलाना मंजूर साहब नौमानी से कौन आए थे? तो कहा दारुल के तलबा आए थे। तो फरमाया मौलाना इलियास साहब ने कि मेरे पास उन्हें क्यों नहीं लेकर आए कि मैं उन्हें काम समझाता।
तो कहा हजरत आपकी बात तो उन्हें समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने उनको सारी बात समझा दी। तो मौलाना इलियास साहब ने कहा तुम्हें तो मेरी बात समझ में आती है, तुम अपना कान मेरे होठों पर रखते और मैं कुछ बात उन तलबा को बताता, वो बात तुम मेरी उनको बताते तो बेहतर होता। जज्बा था बच्चों से, मदरसे के तलबा से मौलाना इलियास साहब को इतना ताल्लुक था। मदरसे के तलबा को चॉकलेट खिला खिला कर समझाते थे। आज भी देखिए आप निजामुद्दीन में दारुल से तलबा आ गए तो गेट खुल जाती है उनके लिए। हम लॉकडाउन में थे निजामुद्दीन में, अल्लाह ने मौका दिया था, लॉकडाउन में 2 मरतबा में रहा, एक महीना, तो देखा कि सबके लिए दरवाजा नहीं खुलता था, लेकिन दारुल से तलब आए तो उनको हम अंदर लेते थे, उनके लिए इंतजाम होता था। आज भी मरकज के दरवाजे तलबा के लिए क्यों? इसलिए कि इनसे काम आगे कराना ही इन्हीं का काम है सब। और मदरसा कहते ही आमला बनाने को, आमला बनाने के लिए मदरसा है, और आमला बनने की मश्क का ये रास्ता है। काम का जज्बा पैदा हो, दिल पर चोट लगे, तो ये बड़ा मदरसा है। इसलिए दारुल साहिबिया के जो जिम्मेदार है, आप हजरात से दरख्वास्त है कि इसकी अच्छी फिक्र करें, क्योंकि शहरी तलबा ज्यादा खतरे में रहते हैं। हॉस्टल के तलबा तो माशाअल्लाह आपकी निगरानी में है, 24 घंटे नूरानी माहौल में है। जो शहरी तलबा है उनको रोज का रोज इलाज की जरूरत है, क्योंकि वो रोज बिगड़ रहे हैं, उनकी ज्यादा फिक्र की जरूरत है। हम बहुत नजर रखते हैं शहरी तलबा पर कि वो आकर हमारे मदरसे का माहौल न बिगाड़े, हम इसकी निगरानी करते हैं, तो इसकी खास खुसूसी फिक्र की जरूरत है। और चूंकि फजर के बाद का वक्त जरा कीमती भी रहता है, असर के बाद अगर मशवरा हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर होता है। असातिज़ा यहाँ मौजूद है, इंशाअल्लाह इसके बारे में मशवरा कर लेंगे। हाँ सुनाओ। दूसरा गश्त शिरकत करने वाले तलबा 8 है। हफ्ते में 24 घंटे लगाने वाले तलबा नहीं है। हर माह 24 घंटे लगाने वाले तलबा 30 है। तातील ईद उल अज़हा में आशरा लगाने वाले तलबा नहीं है, 3 दिन जाते हैं। सालाना तातील में साल 4 माह नहीं है। छिल्ले के 10 तलबा थे, गए थे अभी सालाना, अभी जो छुट्टी मिली थी उसमें क्या गए ईद उल अज़हा की? 4 तलबा जमात, 3 तलबा जमात में गए थे। तो आप फिक्र करना था अच्छे से, क्योंकि 60 तलबा बड़े हैं तो एक जमात तो बना सकते थे। सेरोजा भी नहीं गई जमात? गई सेरोजा में 60 तलबा गए थे। कितने? 2 जमातें गए थे। अच्छा माशा, 3 सेरोजा की। बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। अभी भी वहाँ मशवरे में आ रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि बड़ी तादाद में तलबा से रोज़ा में जा रहे हैं आपके पास से। बोले अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे हजरत इस बात को बार बार बता रहे, दावत के काम को हम तालीम में हरज ना समझे, हारिज नहीं, मुआविन समझे। बस जब हम समझ लेंगे तो फिर सारा काम आसान है। 10 मिनट में हरज क्या होता है? क्या हमारे मदरसे में ऐसा निज़ाम थोड़ा ही है कि 24 घंटे में आधा घंटा निकालने से हरज होता हो? ऐसा नहीं है कि हमारे तलबा ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल सोने भी टाइम नहीं मिल रहा है, खाने भी टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आधा घंटा सारे वक्त को नूरानी और कीमती बना देगा। फिक्र करें इसकी। चलो ठीक, हाँ बोले ना, अभी मशवरे में आया है। अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। 50 तलबा इस मदरसे से जा रहे, बता रहे, अच्छी बात है बहुत। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा अशरफिया राजौली, कुल तलबा 90 है और बड़े तलबा 20 हैं। तालीम में शिरकत करने वाले तलबा 100 तलबा। मशूरे में शिरकत करने वाले तलबा। तालीम कब होती है आपके पास? रोजाना तालीम कब होती है? और फजर नमाज के बाद। फजर बाद होती है जी। कौन सी किताब से तालीम करते हैं? फदाइल अमल। और कितनी देर तालीम करते हैं? 15 मिनट। हाँ, 10 मिनट तक तालीम है। अजीज तलबा, हमारी जो तालीम है मदरसे की तरफ से हो रही है, बढ़कर अलग बात है, लेकिन हमारा जो निसाब का हिस्सा है वो 10 मिनट से कम कम में अपनी तालीम को निपटा लेना है। ठीक है इंशाअल्लाह, तो उससे कोई हरज नहीं होगा। 8-10 मिनट तालीम करने में ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होगा उससे। और मशूरा में शिरकत करने वाले तलबा 4 तलबा। और रोज़ाना मुलाकात करने वाले तलबा नहीं। पहला गश्त करने वाले तलबा 20 तलबा और दूसरा गश्त करने वाले तलबा नहीं। हफ्ता
हर हफ्ता 24 घंटे जमात नहीं बनती है, 24 घंटे की जमात आपके पास से नहीं बनती है। बड़े तलबा है ना 20 नहीं बनती। नहीं बन रही है, फिक्र अब तक नहीं किए, तो अब इंशाल्लाह फिक्र करो, है ना, अपने असातिज़ा से बात करके। जी जी नहीं, थोड़े तलबा मुकामी है। जी बताइए। माशाल्लाह आपके पास जो है 90 तलबा है, जी तो मशवरे में सिर्फ 4 तलबा जुड़ रहे हैं, बाकी तलबा कहाँ जाते हैं? मुकामी साथी हैं घर को, हाँ? मुकामी साथी हैं घर को जाते हैं तलब। घर को जाते हैं। कब होता मशवरा आपका? जुम्मे की फजर की नमाज के बाद। फजर में जब से। तो अभी बताया ना कि भाई ऐसे वक्त में मशवरा करें कि पूरे तलबा हों। आए हजरत आए ना आप? क्या मौला बेटी ऐसे वक्त में मशवरा करें, सारे तलबा रहें तो इंशाल्लाह। हाँ 20 तलबा है, बालिग तलबा आपके पास माशाल्लाह, तो कम से कम 20 तलबा तो जो है मशवरे में शिरकत करें तो बेहतर। हाँ तो मदरसे का मशवरे का दिन बदल दें, जुमा नेसा का दूसरा वक्त, उसमें सब जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हर माह 2 या 24 घंटे लगाने वाले तलबा कोई नहीं, तरतीब 5 अमल करने वाले तलबा नहीं, तातिल ईद उल अज़हा में अशरा लगाने वाले तलबा 3 दिन की जमात है, और सालाना छुट्टियों में भी जमात गई थी मदरसे से माशाल्लाह। हाँ अब और सालाना तातिल में साल 4 माह चिल्ला में लगाने वाले तलबा अशर की जमात जाती सब। रोज़ाना का जो मशवरा है मौलाना जो बता रहे, वो असर के बाद हो जाए तो उसमें कोई तालीम का हरज नहीं होता है। तालीम के टाइम में हो जाए, असर के बाद जो वक्त मिलता है उसमें 5-7 मिनट में हो जाता है मशवरा। क्योंकि मस्जिद का जो मशवरा हो रहा है वही मशवरा हम 3-4 मिनट का बता रहे, तलबा का मशवरा तो और मुख्तसर है, तो 10 मिनट से कम में मशवरा हो जाता है। असातिज़ा थोड़ा सा अमलन करके बतला दिए तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। आओ सिराजुल उलूम गोडूर। सुनो जल्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा सिराजुल उलूम पोनकल गुडूर। कुल तलबा 40 पर 2 हैं, बड़े तलबा 18 हैं। साल 4 माह चिल्ला लगाए हुए तलबा 4 हैं, 4 माह लगाए हुए तलबा 2 हैं। तालीम में शिरकत करने वाले तलबा 40 पर 2 हैं, मशवरे में शिरकत करने वाले तलबा 40 पर 2 हैं। रोज़ाना मुलाकात करने वाले तलबा नहीं है, इंशाअल्लाह आइंदा शुरू करेंगे। पहला गश्त करने वाले नहीं है, इंशाअल्लाह आइंदा शुरू करेंगे। दूसरा गश्त करने वाले तलबा कब करते हैं? आप मशवरा कर रहे हैं ना जी, कब करते हैं मशवरा? और मशवरे में क्या बात करते हैं? असर के बाद। तो क्या करते हैं इसमें? मशवरे की कोई तरतीब बताओ आपकी। आप बैठते हैं मशवरे में? जी हाँ, तो वो बताओ क्या होता है मशवरे में? तकबीर उला के साथ कितने तलबा नमाज पढ़ रहे हैं। काम की फिक्र क्या होती है? जो काम ये जो कर रहे हैं ना तबलीग का भी, जी, तो इसके बारे में क्या बात होती है वो भी बता दो। तकबीर उला तो इंशाअल्लाह करना ही है तलबा के लिए, वो तो लाजिम है जी। मशवरे में बैठते हैं तो मशवरे में काम की फिक्र नहीं दिलाते, तवज्जो नहीं दिलाते काम की तरफ? सुबह शाम में तालीम होती। कोई उस्ताद भी बैठते हैं क्या आपके मशवरे में? जी बैठते हैं। रहते हैं। हाँ, तो नीचे के कॉलम खाली है, तो मशवरे के अंदर माशाल्लाह सारे तलबा बैठ रहे। जी, जो काम यहाँ पर बताया जा रहा है उस काम को कायम करने की फिक्र करे। पर्चे से ऐसे महसूस हो रहा है कि काम कुछ भी कायम नहीं किया गया है अभी, तो हरज नहीं, अब तक कोताही हो गई तो आप कायम करें। अल्लाह ताला का फजल करम है, हर मदरसे में चल रहा है निज़ाम, सारे मदरसे मुतवज्जे हैं। हद से ज़्यादा हुजूम हो जा रहा है, बल्कि अलग अलग जोड़ करने पड़ रहे हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता जोड़ करे 1300-1400 तलबा, 800 का इंतज़ाम करे, 500 तलबा बढ़कर आ गए, सुधर नहीं रहा था किसी को भी।
تو پھر اس کے بعد پھر جوڑ کو بڑھا کر 2 کرے، پھر 3 کرے، پھر 5 کرے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. جس مدرسے کے بارے میں ہم سوچے بھی نہیں تھے وہاں سے بھی طلبہ آئے، تو اللہ کے کرم سے رجوع ہو رہا ہے. اب کام کا شرح صدر ہو چکا ہے. اتنے اہل علم کام میں لگ گئے، اتنے علماء کام میں لگ گئے کہ واضح طور پر یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ واقعی علماء کا کام ہے. ابھی کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے. تو اساتذہ اگر تھوڑی سی اگر فکر کر لے، چونکہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو عملاً کر کے بتلانا پڑے گا. عملاً کر کے بتلائیں گے تو پھر بہت آسانی سے یہ ذمہ دار بن کر سنبھالیں گے، اور اچھی طریقے سے روزانہ کے جو سارے اعمال 3 کام ہیں، مشورہ، تعلیم اور ملاقاتیں، اچھے طریقے سے یہ کریں گے. پھر ہمارے مدرسے میں یہ ماحول بنے گا، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. کام کرنے سے ہی سارا کام قائم ہوتا ہے. تو آپ حضرات اساتذہ آپ کے آئے آپ کے ساتھ؟ جی آئے 4 اساتذہ. ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں اساتذہ آئے. تو چونکہ اساتذہ جیسے ہر کام کی سرپرستی کر رہے، اس کام کی بھی سرپرستی کرنا پڑے گا. ہم دیکھ رہے مدرسوں میں جہاں اساتذہ رہبری کر رہے بڑی آسانی سے کام قائم ہو رہا ہے. استاذ کو اللہ نے روحانی باپ بنایا ہے، وہ جو بات بتائے وہ قبول ہوتی ہے. آپ حضرات ذرا سے تھوڑا سا انگلی پکڑ کر چلا دے، پھر انشاءاللہ مڑ کر دیکھنا نہیں پڑے گا. پھر یہ بچے جن کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے آج وہ امیر بن کر دور دور چلے جائیں گے. اتنی دور دور جماعتیں جا رہی ہے اللہ کے کرم سے، اور طلباء امیر بن کر جا رہی. تعجب ہو رہا ہے دیکھ کر. فکر کیجئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹے. آگے آپ یہ جو کالم خالی ہے اس کی انشاءاللہ آئندہ کے جوڑ میں فلفل کر کر لائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں ماشاءاللہ آپ تو باشعور ہے. اللہ قبول فرمائے آپ کی کارگزاری کو. اور آؤ آگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ سب چیزیں قائم کرنا ہے. اصل کیا ہے، روز کا کام ہوتا ہے، تھوڑا ہے لیکن اس سے تعلق باقی رہے گا. جی آگے. عمر بن خطاب ماشاءاللہ آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ عمر بن خطاب بدھوار پیٹ کرنول. ہمارے مدرسے میں کل طلباء 30 ہیں، بڑے بالی طلباء 7 ہیں. تعلیم مشورہ تو نہیں ہوتا مدرسے میں، تو ہاسٹل کارگزاری میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ عزائم میں لکھا ہوا ہے کہ ساتھ سارے طلباء کو جوڑیں گے. انشاءاللہ اچھی بات ہے. یہی ہمارے جوڑ کا منشا ہے کہ اب تک اگر نہیں کر رہے تھے تو اب شروع کر دینا ہے بس. یہی منشا ہے جوڑ کا. ہاں سوال کا یہی منشا ہوتا ہے کہ سوال اسی لیے ہوتا ہے کہ میں نے اب نہیں کیا، اب کرنا ہے بس. انشاءاللہ. جی اور سنا دو، نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ سنا دو. وہ ہر ماہ طلباء ایک دن کی جماعت تو نہیں جاتے، سب نابالغ طلباء ہیں، تو اس لیے جو بالغ طلباء ہیں وہ اپنے مسجد سے جاتے ہیں. اچھا. ہمارے مسجد جماعت مسجد سے کب جاتے ہیں وہ چھٹی میں جاتے ہیں اتوار کے دن. اچھا آپ کے مدرسے میں چھٹی اتوار کو ہے کیا؟ جی سب طلباء غیر اقامتی ہیں. ہاں جی بعض جگہ. ٹھیک. تو اتوار کے دن چھٹی میں جاتے ہیں وہ. اچھا بہتر ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں چھٹی میں پہلا غش کرتے ہیں. تو وہ 24 گھنٹے لگاتے ہیں اتوار کے دن. جی ماشاء. ہفتے کی رات سے اتوار کی رات تک. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے. سبیل الحسنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ دارالعلوم سبیل الحسنات منگل پاڑ. کل طلباء 55 ہے، بڑے طلباء 15 ہے. مدرسے میں اب تک عمر کے مطابق کچھ کرے نہیں، انشاءاللہ آئندہ سے کرنے والے ہیں. یہاں آئے طلباء آپ کے مدرسے کے طلباء آئے؟ جی آئے. کتنے طلباء آئے؟ 18 طلباء ہیں. 18 طلباء آئے ماشاءاللہ. کہاں ہیں وہ بیٹھے ہوئے طلباء؟ سب
हाथ उठाओ जो मदरसे से तलबा है। हाँ, माशाल्लाह अच्छे तलबा है, सब प्यारे तलबा है, इनको आगे चलकर काम करना है, तो अब जाकर कल से काम कायम करो। असातिज़ा है, आया उस्ताद लेकर आए हैं, जी तो माशाल्लाह असातिज़ा सब सारी बातें ले रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा उंगली पकड़ना पड़ेगा बच्चों की, उसी से काम कायम होगा। छोटे ना समझे, मस्जिद में कितने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं दावत के साथी, और वो सारा काम करते हैं, आगे बढ़ बढ़ कर सारे काम में शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे ही मदरसे में पढ़ने वाले तो वैसे ही 5 साल आगे रहते हैं हर काम में। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह शाऊर अल्लाह ने मदरसे वालों को ज़्यादा दिया है, तो ज़रूर कायम करें। हम कोई काम को हल्का ना समझे, वक्त निकल जाएगा, जहन इतना बना लेने से बात बन जाती है कि ये काम हमारे काम में मुआविन है, इससे इतना फायदा होगा, तजुर्बा हम कर लेंगे। जैसे दावत का तजुर्बा करके उलमा काम में लगे, पहले तो आवामी करते थे, ढूंढने से भी आलिम नहीं मिलते थे। अब जितनी जमातें उलमा की जा रही है अंदाज़ा नहीं है। अभी मौलाना फारूक साहब कल हैदराबाद में थे, फीजी जा रहे थे, तो मौलाना फारूक साहब आए थे, तो वो कल ही बता रहे थे 101 जमातें दूसरे साल की काम कर चुकी है। इतने उलमा की जमातें, ये कारगुजारी सुनाकर बता रहे थे। पहले लोग आकर बोलते थे हमें एक आलिम चाहिए, जमात में तो नहीं मिलता था। आज सारी जमात उलमा की जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, बात शुरू में समझ में नहीं आती थी, अब होलसेल चल रहा है मामला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही ये जो तलबा है हमारे, जैसे असर के बाद भी बताया गया है, मदरसे के ज़माने में अगर ये काम में जुड़ जाए तो बाद में इन्हें बहुत फ़ायदा होता है हर एतबार से। इस काम की बरकत से तरबियत होगी, तरबियत की बरकत से ज़िंदगी नेक और एक और पाक और साफ बन जाएगी। तो इंशाअल्लाह जैसे हमारे तालिब इल्म बता रहे कि अब आइंदा हम अपने मदरसे में सारा काम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह को बोलो, जाओ, बहुत अच्छी माशाअल्लाह। नूरुल इस्लाम, मदरसा नूरुल इस्लाम, माशाअल्लाह। थोड़ा सा शहर से करना पड़ेगा, काबू में आएगा, नहीं लेना पड़ता है इसके साथ। मदरसे में काम अधिक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा नूरुल इस्लाम डोन, ज़िला करनूल, सूबा आंध्र प्रदेश। कुल तलबा 35 हैं, बालिग तलबा 6 हैं। साल 4 माह छिल्ला लगाए हुए तलबा इंशाल्लाह नहीं, अभी आपके मदरसे में क्या अमल होता बताओ, उसको छोड़ दो। ठीक है, अल्लाह खुल फरमा। क्या बता रहे मौलाना, क्या बता रहे? मैं शुरू कर दूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात, बस यही मंशा है चलो कि हो रहा है माशाअल्लाह, मुबारक है, नहीं हो रहा है तो शुरू करना है बस। हजरत और सबीलुल अनवार, मदरसा सबीलुल अनवार कहाँ है? तशरीफ लाए, बैठो। रेवेन्यू कॉलोनी गणेश में। जाबिर साहब का ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा दारुल उलूम सबीलुल अनवार, ज़िला करनूल। कुल तलबा 40 हैं, बड़े तलबा 15। साल 4 माह छिला लगाने वाले तलबा 5। जो 15 है, यहाँ कितने आए उसमें से? यहाँ पे 4 आए हैं, 4 आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, थोड़े ही आए। हाँ, छुट्टी पे जाके, छुट्टी पे जाके, जुमेरात जुम्मा छुट्टी है। छुट्टी का ही ज़माने की कुर्बानी देना रहता है, दावत के काम में छुट्टी का ही ज़माना लगाना रहता है जी। तालीम में शिरकत करने वाले तलबा कुल 40 हैं, अजीम 40 हैं। मशवरे में शिरकत करने वाले तलबा 12 हैं, अज़ाइम 30। रोज़ाना मुलाकात करने वाले तलबा 8, अज़ाइम में 12। मुलाकात किस तरह करते हैं बताओ, थोड़ी बात बताओ। आपस में आप लोग मुलाकात में करते हैं ना, बच्चे आपस में क्या बात करते हैं? बच्चे में मोहल्ले के जो महल्ले में जाकर करते हैं।
نہیں، مدرسے میں جو ملاقات ہے نازیز طلباء وہ آپس میں کرنا ہے. مدرسے والوں کے ذہن میں جہاں ملاقات کی بات یا کوئی بھی دین کی بات کرنے کی بات آتی ہے تو پہلا خیال آ جاتا ہے کہ بے دین باہر والے ہی ہے. بس وہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے طلباء کو آگے چل کر کام کی عادت ڈالنے کے لیے یہ ملاقات ہے. بہت بڑا کام ہے یہ. حجاب ہے ہماری طبیعت میں، ہمیں بات کرنے تکلف ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے. کتنا ماحول گر گیا. ذرا سا کوئی نفل پڑھنے لگ جائے تو لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے بزرگ بن رہے تم، حالانکہ نفل پڑھنے پر تانا دینے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. سنت چھوڑ دینا گناہ ہے، سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے، لیکن لوگ تانا دیتے اگر سنت کو اختیار کرے. جس نے یہ جملے کہہ دیے کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے تجھے اب بچی کون دیں گے، تو علماء سے مسئلہ پوچھئے کہ ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. تکلف نہیں کرنا ہے ہمیں ملاقات میں، آپس میں ملاقات، ہلکے انداز میں بات کرو. آپس میں جب ہم ملیں گے، ساتھی کے پاس گئے ملاقات کے عنوان پر اور اپنے ساتھیوں سے ملے، دنیاوی خیر خیریت جو تعلیم کی خیریت لو، پڑھائی کیسے چل رہی ہے تمہاری، کیا سبق تم نے آج سنایا. اسی ضمن میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ جمعرات کو جماعت جا رہی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے تھوڑی بات کر کے آپ کو بھی تیار کر لو. بظاہر ذرا بولنے میں حجاب محسوس ہوگا، لیکن 1 سے 4 مرتبہ جب یہ بات کرو گے پھر عادت ہو جائے گی، پھر تکلف نہیں ہوگا کوئی بھی. انشاءاللہ کریں گے سب طلبہ. سمجھے ہماری بات یا نہیں سمجھ رہے؟ سب لوگ سمجھ رہے نا؟ روزانہ جو ملاقاتیں کرنا ہے اپنے مدرسے کے اندر، 15 طلبہ بڑے ہیں تو واپس میں ملے ایک دوسرے سے. دوستیاں کرنا مقصد نہیں ہے، دوستیوں سے تو حجاب ہے، لیکن کام کے عنوان پر ملاقات کے اثر کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے. آپ مشورے میں کل نظر نہیں آئے تو میں اس لیے آیا تھا. اگر آپ مشورے میں بیٹھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. میرے سے زیادہ آپ کے اندر صلاحیت ہے. ایسے ہلکے انداز میں بات کرنا عزیز طلبہ. ایسے ہی جمعرات کو ہماری جماعت جانے والی ہے وہ بتا دے، تعلیم کے اندر بٹھانا ہے وہ بتا دے. کرنے سے سب کام سمجھ میں آئے گا. چھوٹے سے چھوٹے بچے مذاکرہ کر رہے، ہم گھر کے پاس ملاقات میں گئے، 4 سال کے بچے کے بارے میں والد بتائیں ان کو 6 صفات کا مذاکرہ آتا، پوچھئے آپ بولے. 4 سال کی عمر میں دھڑا دھڑ حدیثیں سنانے لگے وہ 6 صفات کی. اور ہم مدرسے میں رہ کر اگر ہم تکلف محسوس کریں گے کیسے کام ہوگا بولو؟ کوئی حیا کی بات نہیں ہے اس میں. حیا تو گناہ کے اندر ہے کہ گناہ سے رک جائے کہ حیا اجازت نہیں دے رہی. باقی دین کے کسی عمل میں حیا روک رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. حیا تو آگے بڑھاتی ہے کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. فکر کریے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مدرسے میں کرو ملاقاتیں. بڑے طلبہ ہے نا، 15 طلبہ ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے کی جماعت جاتی ہے کیا؟ 24 گھنٹے کی جماعت 8-10 طلبہ لکھے نا. کب گئی تھی جماعت گزشتہ؟ پچھلے مہینے. جی پچھلے مہینے گئے تھے. ہاں. آپ بھی گئے تھے؟ ہاں. کہاں گئی تھی جماعت؟ گاؤں کا نام تو مائک میں بتاؤ، مائک میں بتاؤ، سب کو معلوم ہوتا. گاؤں کا نام تو سیدھے سے یاد نہیں ہے. گاؤں میں گئے تھے؟ ہاں. کون سے گاؤں میں؟ آواز سے بولو، سب کو سناؤ کہ کہاں گئے تھے، کیا کام کرے وہاں جا کر بتاؤ. نام تو یاد نہیں ہے مگر کب گئے تھے مدرسے سے، کب نکلے تھے بتاؤ. جمعرات کے دن ہے. یہ آپ کے مدرسے کے طلبہ ہیں؟ نہیں وہاں آ گیا. کہاں ہیں آپ کے مدرسے کے طلبہ؟ کون کون گئے تھے جماعت میں؟ یہ جب جماعت گئی تھی ہاتھ اٹھاؤ، جو گئے تھے وہ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ 4-5 طلبہ اس میں گئے تھے، 6 طلبہ گئے تھے ان کے ساتھ. آپ کے ساتھ ذمہ دار کون تھے جماعت میں؟ حضرت تھے. جی حضرت. اچھا حضرت گئے تھے آپ کے، مولانا ساتھ گئے تھے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. چھوٹے بچے جا کر گاؤں کے اندر جب کام کریں گے اتنا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے، حد نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں حیدرآباد میں تقاضا آ رہا ہے مدرسے پر کہ ہمارے حلقے میں جماعت بھیجیے. ایسے ساتھی تقاضا کر رہے جن کے 10 سفر بیرون کے ہو گئے اور بتا رہے کہ گزشتہ جماعتیں تھی تو بہت فائدہ ہوا ہے. ہمارے بچے جا کر جو انقلاب برپا کریں گے، محلے کے 60 سال کے بزرگوں کو ہلائیں گے اور ایک بڑی عمر کے آدمی کو کلمہ نماز سکھلائیں گے. 24 گھنٹے میں اتنا کام کر کے آ جائیں گے کہ محلے والے پریشان ہو جائیں گے. کرانے کی ضرورت ہے، صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانا ہے.
अगर हमने आज ये काम नहीं कराया अपनी सरपरस्ती में, निगरानी में, तो कल भी हम तवक्को नहीं रख सकते। कल ही आगे उसी वक्त बढ़ सकेंगे जब हम आज कराएंगे। तो यह में जरा 24 घंटे की जमातों में थोड़ी किसी कदर कमजोरी चल रही है, तो ये अहम बात है ये, तो इसलिए इसकी थोड़ी फिक्र करना है। निजामुद्दीन में मदरसे के तलबा को अब इस वक्त में ये बताया जा रहा है हर हफ्ते जमात में जाना है। तो ऐसे तलबा तैयार करना है जो महीने में 4 मरतबा जमात में जाए, 3 मरतबा, आखिरी दर्जे में 2 मरतबा, इंतहाई आखिरी दर्जा हर महीने में 1 मरतबा है। कर लेंगे इंशाल्लाह। ये और कौन सा मदरसा है? इंशाल्लाह। ये छुट्टियों में जमात में गए थे क्या तलबा? बकरा ईद की छुट्टियों में नहीं गए थे, ठीक है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कोई मदरसा है तो आओ आओ बेटे आओ। बहुत अच्छी कारगुजारी सुना रही, यही कारगुजारी सबब बनेगी बड़ी कारगुजारी की। एक दिन आएगा निजामुद्दीन में बैठ के सुनाएंगे। शहर के यहाँ तो बहुत बड़ा मजमा है, 2 भी होते तो हम यही सारी बात सुनाते। 2 लोग भी रहते आप हजरात में से तो पूरी बात यही सुनाते। हमारे दारुल उलूम सईदिया की जमात निकले थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात जाने से तारुफ भी हुआ, भाई मदरसा दावत वाला है। तो गुज़िश्ता साल से इस साल से तलबा में इजाफा भी हुआ। बताओ जी, सारे फायदे होंगे। ये तो ज़िम्नी फायदा है, असल फायदा तो हमारे मकासद में हमें कामयाबी मिलेगी। जिस मकसद के लिए हमने दरो दीवार बनाई उसमें यकीनन कामयाबी मिलेगी। हिसाब से एहतिसाब आ जाएगा, हिसाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम तो रात दिन देख रहे हैं इसके फायदे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई एक हफ्ता भी हमारे पास मदरसे में जमात का नागा नहीं होता है। हम भूल भी गए तो बच्चे पकड़ पकड़ कर बोलते रुख तय करो। अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा हफ़ाज़ उर्फ छाबू मियाँ, सैयद छाबू मियाँ, करनूल, आंध्र प्रदेश। कुल तलबा 55, बड़े तलबा 25, तालीम में शिरकत करने वाले तलबा 10, ज़ाइम 5। छुट्टियों में जाते हैं, 24 घंटे की जाते हैं या 3 दिन के लिए जाते हैं। कब गए थे छुट्टियों में? कब गई थी जमात? गई थी अभी ईद उल अज़हा के दिन में। 3 दिन के लिए गए थे। 24 घंटे की जमात नहीं जा रही, क्यों? फिक्र नहीं करे इसकी? जाते हैं 1.5 महीने 2 तो महीने। लिखे नहीं ना यहाँ पर? रमजान के बाद गई थी कोई जमात? उस्ताद होंगे आपके यहाँ है जी, असातिज़ा है ये मदरसे के? कोई जमात यहाँ से? जी मौलाना, अच्छा गुज़िश्ता गई थी जमात ये? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी हाँ जी। तो असल 24 घंटे की भी जमात बनाने से फ़ायदा होता है। जी जी जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है। नंदू कोटपुर से कोई मदारिस के तलबा हैं क्या? पढ़ना नहीं आए? और ऐसा कोई मदरसा जिसका नाम नहीं आया हो, कोई है क्या जिनकी कारगुजारी नहीं हुई? तमाम तलबा से गुजारिश है, इशाम की जमात 8:30 बजे होगी, उसके बाद जो है और एक नशिस्त होगी थोड़ी देर के बाद, इशा की नमाज के बाद फिर एक मजलिस होगी। सारे तलबा नमाज के बाद बैठे, उसके बाद खाने का नज़म होगा। हाँ, तलबा और असातिज़ा कराम अपने अपने बच्चों को लेकर बैठे, उलमा कराम भी तशरीफ़ लाए। इशा की नमाज के बाद जो है इंशाअल्लाह और एक नशिस्त होगी और उसमें तलबा और असातिज़ा तशरीफ़ रखें और हमारे उलमा कराम जो मक़ाम उलमा कराम तशरीफ़ लाए वो भी जो है इशा की नमाज के बाद बैठना है। ये मजलिस इंशाल्लाह हमारा जो जोड़ है कल नाश्ते तक है, तो इंशाल्लाह जो पूरा अमल होने के बाद अपने अपने मदरसों को रवाना होना है। इसलिए जो है सारे तलबा फजर की नमाज के बाद भी जो है इंशाल्लाह बयानात होंगे, फिर उसके बाद नाश्ते खाकर अपने अपने मदरसों को रवाना होना है इंशाल्लाह। ठीक है ना? नमाज की तैयारी करें। सुभान अल्लाह फायदा होगा इससे। क्या करना है सोच सकते